Hello everyone, welcome back. So I hope that you all are keeping fine and doing great. I welcome you all to this platform. Today we will be beginning with the last chapter, India, Climate, Vegetation and Wildlife. So we started our chapter series from chapter number 1, the Earth in the solar system. We moved ahead discussing in detail about the Earth in specifically. Slowly and gradually, we understood what are the reference lines that we have, latitude, longitude, how do we calculate the time, how do we find the places. Then we moved ahead discussing the motions of the Earth, that is the movement of the Earth, whereby we discussed about rotation, revolution. Then we moved ahead discussing about the maps. And I think now that you have realized the importance of maps, you can understand very well that what are the benefits of maps, since we have been using in last 2-3 chapters maps, right? Then we moved ahead after that discussing about the major landforms. Okay, major domains of the earth, major domains of the earth में हमने बात करी थी आपके continents की, कौन कौन से continents होते हैं. Then we moved ahead discussing about the 3 spheres, the life sustaining components, that is your lithosphere, hydrosphere and atmosphere. And thereby ultimately when all of these 3 meet and interact and overlap, we see that biosphere is created where life is possible, right? Then we moved ahead discussing about the major landforms. In general, in that chapter, we talk about the major landforms like mountains, plains, and plateaus. Further, we moved ahead coming to our country chapter. That is the previous lecture, the last lecture that we did, talking about our country and looking in that all the major landforms, connecting all the chapters, all the concepts that we have gone through. Today, we will be moving on with this last chapter of class 6 geography, that is India, climate, vegetation, and wildlife. So, we are basically talking about our country. हम हमारी कंट्री के बारे में ही बात कर रहे हैं. लास्ट चैप्टर में हमने हमारी कंट्री की लोकेशन एंड सेटिंग्स को देखा था. क्या लैटिट्यूड्स है, क्या लॉन्जिट्यूड्स है, कहाँ से लेकर के हमारी कंट्री कहाँ तक एक्सटेंड होती है, इसके नेबर्स कौन है, राइट? पॉलिटिकल डिविजन्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स क्या है, how many states are there, how many union territories do we have. Okay, all right, so we completed till here and now we are coming up with this last chapter and soon we'll be finishing up. Okay, so let's begin our today's class, India, climate, vegetation and wildlife. You read in newspaper daily and watch on television or hear others talking about weather. आपने कभी सुना होगा या आपने टीवी पर भी देखा होगा, और if you read newspapers or if you have ever आपने कभी अपनी फैमिली में किसी को बात करते हुए सुना हो, then generally people talk about weather, कि आज का मौसम बहुत ऐसा है, आज का मौसम बहुत अच्छा है, आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है. दिस इज ऑल इज वेदर. ठीक है. सो आपने कभी सुना होगा, जब टीवीज आप देखते हैं, टेलीविजन आप देखते हैं, अगर आप रेडियो सुनते हैं, आपके यहाँ पर रेडियोज अवेलेबल हैं, सो यू ऑफन हियर दीज थिंग्स. ओके, सो पीपल टॉक अबाउट वेदर. You must know that weather is about day-to-day changes in the atmosphere. It includes changes in temperature, rainfall, and sunshine, etc. For example, as such, it may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm. You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing. You also like to eat or drink cold things. In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes. When it is very windy and chilly, you would like to have something hot to eat, right? So see what this introduction is talking about here.
अभी हम आपका टॉपिक कर रहे हैं क्लाइमेट. ओके, वी आर बिगिनिंग इन दिस पैराग्राफ विद द टॉपिक क्लाइमेट. ओके, नाउ सी, there is a difference between weather and climate. There are two terms. ठीक है, दो terms होते हैं. एक होता है weather और एक होता है climate. ठीक है, one is your weather and one is your climate. ठीक है, these are the two terms that you see here. So weather जो होता है, that is the day to day changes that we observe in a day. Okay, day to day changes, or we can say that weather जो होता है, weather conditions changes very very quickly. Okay, अभी आपको थोड़ी देर पहले बहुत तेज धूप दिखाई देगी, थोड़ी सी देर में आप देखेंगे that the weather conditions quickly changes, बहुत जल्दी weather conditions change हो जाती हैं. ठीक है, and then you see that बारिश हो जाएगी या फिर आप देखेंगे बिल्कुल क्लाउडी वेदर हो जाएगा. सो वेदर कंडीशंस जो होती है वो बहुत ज्यादा जल्दी चेंज होती रहती हैं. ठीक है, सो वेदर कंडीशंस दे क्विकली चेंज, वेदर कंडीशंस क्विकली चेंजेस. ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट, climate refers to the sum total of the weather conditions and variations over a large area for a very long period of time. Now see, what is the difference between climate and weather? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके, देखो, वेदर जो होता है वो डे टू डे फिनोमिनाज होते हैं. ठीक है, वो आप बेसिकली देखेंगे कि डे टू डे फिनोमिनाज है ये, एंड द वेदर चेंजेस वेरी वेरी क्विकली. वेदर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है. अभी आप देखेंगे बहुत अच्छा मौसम हो रहा होगा, लेकिन थोड़ी सी देर में आपको क्या दिखेगा, सन हीट दिख जाएगी. यू विल फाइंड दैट द टेम्परेचर्स आर चेंजिंग, यू विल फाइंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ हीट इज देयर. ओके, सो दैट इज योर वेदर. वेदर कंडीशंस आपकी बहुत जल्दी चेंज होती हैं, आर टू आर चेंज हो जाती हैं, डे टू डे चेंज हो जाती हैं, राइट. ऑन द अदर हैंड, अगर हम क्लाइमेट की बात करें, सो क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस. क्लाइमेट का मीनिंग क्या होता है, सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशंस. ठीक है, सो क्लाइमेट का मीनिंग होगा कि हम जितना भी वेदर नोट कर रहे हैं डे टू डे जो चेंजेस आ रहे हैं वेदर के अंदर, जो हम सारे डे टू डे चेंजेस को हम कलेक्ट करते हैं, उसका एक रिकॉर्ड बनाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. से फॉर एग्जाम्पल वी कैन से मोर देन 30 years. ठीक है, तो इतने लंबे समय तक जब हम वेदर कंडीशंस को डेली ऑब्जर्व करते हैं, उसके डे टू डे चेंजेस को हम डेली ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड करते हैं, नोट डाउन करते हैं, एंड देन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इतने सालों तक हम ये करते रहते हैं, एंड देन वी कंपाइल ऑल द डेटा एंड वी कम टू नो दैट इस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कैसा है. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं इस प्लेस का क्लाइमेट जो है वो बहुत कोल्ड क्लाइमेट है. ठीक है, और वी कैन से दैट इट्स मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो ये हमें पता कैसे लगा, हाउ डू वी कम टू नो, हमें ये मालूम कैसे लगा कि इस प्लेस का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस है या हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ये हमें पता कैसे लगा. सो दिस इज बिकॉज ऑफ स्टडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. काफी लंबे समय तक स्टडीज करी गई हैं, और उन स्टडीज के द्वारा ये पता लगता है हमें दैट वेदर किसे बोलते हैं, क्लाइमेट किसे बोलते हैं. वेदर फिनोमिना जो है वो आपके बहुत क्विकली चेंज हो जाते हैं. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट जो है वो आपका इतना जल्दी चेंज नहीं होता है. क्लाइमेट पता करने के लिए हमें वेदर कंडीशंस की स्टडी करनी पड़ती है फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बहुत लंबे समय तक हमें वेदर कंडीशंस की स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके हमें पता लगता है कि क्लाइमेट क्या है इस पर्टिकुलर प्लेस का. आई होप दैट दिस हैज मेड सेंस टू यू. आपको ये समझ में आया होगा. ओके, सो बिफोर बिगिनिंग वी शुड हैव अ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनोलॉजीज. ये दोनों टर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर एंड क्लाइमेट. ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. व्हाट इज वेदर, व्हाट इज क्लाइमेट. नाउ रीड दिस लाइन. You must know that weather is about day-to-day changes in the atmosphere. Okay, so weather क्या होता है, weather it is a day-to-day changes in the atmosphere. Atmosphere के अंदर जो भी day-to-day changes आते हैं, ठीक है, like temperature change हो गया, आप देखते हैं अचानक से बारिश हो जाती है,
ठीक है, अभी आपको बहुत तेज गर्मी दिखेगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यू विल फाइंड दैट इट इज रेनिंग वेरी हेवीली. So this is what, and after that you will find that the conditions have become very very cool, right? So this is how the weather changes. Weather changes very very quickly. It is the day to day changes in the atmosphere. It includes changes in temperature, rainfall, and sunshine, etc. This is what I told you, है ना? So weather की वजह से आप किन किन चीजों में changes देखने को मिलेगा? You will find changes in the temperature, you will find changes in the rainfall, you will find changes in sunshine. सनशाइन में चेंज कैसे आएगा? यू विल फाइंड दैट अभी बहुत तेज गर्मी थी, थोड़ी देर बाद में सब चीजें थोड़ा सा आपको कूल डाउन सी लगने लगती हैं. ठीक है, सो ये ऑब्जर्व करिए आप. व्हेन यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग दीज चेंजेस, you will be able to understand weather क्या होता है, climate क्या होता है. ठीक है, so please start observing these things. आप इन चीजों को ऑब्जर्व करें. डे टू डे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, दे आर वेरी क्लियरली विजिबल. ठीक है, आपको बस ऑब्जर्व करना है. when you will start observing all these things, you will start relating it. आप ये जो थ्योरी यहाँ पढ़ रहे हैं, इस थ्योरी को आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, ये सारे लाइव एग्जांपल्स हैं. यू कैन सी इन योर सराउंडिंग्स वेरी वेरी इजीली. ऑल राइट, सो लेट्स मूव अहेड. It includes changes in temperature, rainfall, and sunshine, etc. For example, as such, it may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm. ठीक है, आप देखेंगे कभी आपको बहुत बहुत hot weather मिलेगा. You will find sometimes very very cold weather conditions. At times you will find it is sunny right now. थोड़ी ही देर में आप देखेंगे it will become cloudy. ठीक है, at times you will see that बहुत तेज हवा चल रही है, आज बहुत तेज हवा चली है. The weather is very very windy. Okay, but on the other day you will find that the weather conditions have completely changed and the conditions are very calm. There is no wind, there is no windy weather that you saw a day before. Okay, so this is called as weather. जब आपको बहुत जल्दी जल्दी आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस में, आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंजेस दिखाई देते हैं, उसे हम बोलते हैं वेदर. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज वेदर. ऑल राइट, ओके. सो वील हैव अ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. यहाँ पर देखिए आप, क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस क्या होता है. क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशंस. क्लाइमेट किसे बोलते हैं? क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशंस, okay, and variations over a very large area for a very long period of time. So एक बहुत बड़े एरिया पर बहुत लंबे समय तक उन वेदर कंडीशंस को नोट डाउन करा जाता है. एवरीडे वेदर कंडीशंस आर बीइंग नोटेड डाउन. ठीक है, और इतने लंबे समय तक एक बड़े सारे लैंडमार्क्स के जब हम वेदर कंडीशंस को नोट डाउन करते हैं फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन दे आर कंपाइल्ड फॉर द स्टडीज. उनको कंपाइल करके हम जब स्टडी करते हैं तो आपको पता लगता है कि उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कैसा है. ऑल राइट, देन इफ यू टॉक अबाउट द वेदर. अब अगर हम वेदर के बारे में बात करते हैं, सो वेदर रेफर्स द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, सो द टाइम इज नॉट क्लियर. It may change very very quickly, it may change rapidly. Okay, so weather refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time. आप देखेंगे एक स्टेट में बहुत ज्यादा अच्छी वेदर कंडीशंस हो रही होंगी. अभी आप अगर कश्मीर चले जाए, और if you go in the higher altitude regions, you will find there the cold weather conditions. वहां आपको cold weather conditions मिलेगी. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप प्लेन रीजन्स में आ जाते हैं, लाइक यू हैव राजस्थान स्टेट, यूपी, बिहार, अगर इन रीजन्स में जाएंगे तो आपको वहां पर हॉट वेदर कंडीशंस मिलती है. इवन इफ यू गो टू साउथ, साउथ में भी आपको हॉट वेदर कंडीशंस मिलेंगी, बिकॉज वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है. सो दैट इज वाई आप देखते हैं इन द लास्ट चैप्टर ऑल्सो वी सॉ दैट इन स्पाइट ऑफ हैविंग इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री के अंदर, क्लाइमेट में डाइवर्सिटी है, वेजिटेशन में डाइवर्सिटी है, यू सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, राइट? So in spite of that, we see we are united as one country. Okay, so I hope that this is clear to you what is weather and what is climate. आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. Okay, now we move ahead. Okay,
You also like to eat or drink cold things during the hot days. जब days बहुत ज़्यादा hot होते हैं, when you see that there are summers, you feel like eating something very cool. है ना? आपको ठंडी चीजें खाना पसंद होता है. Okay. In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes when it is very, very windy and chilly. ऑल्सो यू सी दैट कुछ आपने डेज ऐसे भी नोटिस करे होंगे जो आपको बहुत ठंड भी लग रही होगी, बट दो दीज आर नॉट विंटर डेज नहीं है, बट सिंस द वेदर कंडीशंस आर वेरी वेरी विंडी, बहुत तेज हवा चल रही है, रेनी सीजन है, विंडी winds are also blowing along with that, so you find that little bit coolness, little bit chilliness you will find. Okay, so you would like to have something hot to eat, right? So this is how the weather conditions are changed. Also, जब आपके वेदर कंडीशंस में चेंज आता है तो उसकी वजह से आप ये देखते हैं कि आपकी फूड हैबिट्स में भी चेंज आ जाता है. वॉट एवर यू ईट अकॉर्डिंग टू दी वेदर कंडीशन. ठीक है, अगर आज मौसम बहुत ठंडा है सो आप कुछ गर्म खाएंगे. अगर आज मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, यू विल फील लाइक हैविंग समथिंग कोल्ड, राइट? ऑल राइट. Broadly, the major seasons recognized in India are. So, accordingly, in weather conditions के basis पर हम ये देखते हैं कि हमारे seasons को classify करते हैं. ठीक है, we classify the seasons. So, हमारी कंट्री में कौन कौन से seasons हैं? We have cold weather season, we have hot weather season, then we have the southwest monsoon season, जिसे हम rainy season भी बोलते हैं. ठीक है, देन वी हैव योर सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, ओके, जिसे हम ऑटम बोलते हैं. तो इन जनरल आपने इनके नेम्स जो है वो ये सुने होंगे. यू मस्ट हैव हर्ड विंटर, आपने समर सुना होगा, रेनी सुना होगा एंड ऑटम सुना होगा. ठीक है, बट दीज आर दी अदर नेम्स ऑफ दीज सीजन्स. ठीक है, ये कुछ दूसरे नाम है, ये नेम्स भी आपको पता होने चाहिए. विंटर को हम कोल्ड वेदर सीजन बोलते हैं. विंटर सीजन आपको कब से कब तक होता है? इट इज फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रुवरी. देन इफ यू टॉक अबाउट द हॉट वेदर सीजन इज फ्रॉम March to May, that is your summer season. Then if we talk about southwest monsoon season आपका, that is your rainy season. It is from June to September. And then we see retreating monsoon season, that is autumn season. That is from October and November. Okay, so ये पूरा आपको monthly division दे रखा है कि दिसंबर से फरवरी तक आप देखते हैं कोल्ड वेदर सीजन रहता है. विंटर क्लाइमेट, द कंडीशंस आर वेरी वेरी कोल्ड. ओके, वेदर कंडीशंस आर वेरी कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड इन सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर यू सी इवन स्नो आल्सो फॉल्स. देन हॉट वेदर कंडीशंस. ओके, हॉट वेदर सीजन, दैट इज योर समर सीजन. कब से लेके कब तक होता है? दैट इज मार्च टू मे. बट नाउ डेज यू सी दैट इतने ज्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से समर्स जो है वो आपकी काफी लंबे चलने लग गए हैं. ठीक है, वी फाइंड दैट द हीट, द टेम्परेचर्स, द ग्लोबल टेम्परेचर्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग. दैट इज व्हाई यू सी दैट द हॉट डेज आर मोर, राइट? जून में भी बहुत तेज गर्मी होती है. देन यू सी इनफैक्ट इन जुलाई एंड ऑगस्ट आल्सो, दीज आर आल्सो द हॉट मंथ्स. So this is what is the change in the climate that we observe. Okay, then southwest monsoon season is your rainy season, जिसे rainy season बोला जाता है because आपके southwest winds जो है वो rainy season लेकर के आता है हमारी कंट्री में. That is from June to September. And then we have the season of retreating monsoon, जिसे autumn season भी बोला जाता है, which is from October and November, जो कि आपको October and November में होता है. Okay. So now we will be discussing one by one. हम एक एक करके सारे सीजन्स को डिस्कस करने वाले हैं. Okay, so first we discuss the cold weather season. अभी हम पहले सबसे cold weather season डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका cold weather season. All right, so we will be discussing about cold weather season or winter season. During the winter season, the sun rays do not fall directly in the region. As a result, the temperatures are quite low in the northern India. ठीक है, if you remember, तो हम आपके एक सीजन्स का डायग्राम करके आए थे. ठीक है, and we saw that जब northern hemisphere में आपके सन रेज फॉल नहीं करती हैं तब आपके northern hemisphere में winters होते हैं.
क्योंकि उस समय सनरेज आपकी कहाँ होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में होती है, ठीक है। एट दैट टाइम द सनरेज आर इन सदर्न हेमिस्फीयर, that is why you see that in the northern hemisphere winters are there. And why am I saying that नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से अपने अपने को क्या लेना देना है, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज हमारी कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। हमारी कंट्री कौन से हेमिस्फीयर में लाई करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। एंड यू नो दैट अर्थ जो है उसका वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट होता है, तो जैसे जैसे अर्थ का मूवमेंट होता जाता है, ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, उसका पोजीशन भी चेंज होता जाता है, राइट। यू विल सी दैट the position of the earth also changes, okay, so that is why we see that in one of the hemispheres it is winters, in the other hemisphere we will see summers, right। during winters आपको पता है we have done this thing in your chapter number 2, that is globe, latitude and longitude, ठीक है। तो उस चैप्टर में हम ये करके आए हैं, if you remember that seasons वाला जो एक डायग्राम था, आई जस्ट शो इट टू यू वंस अगेन, आपको वो डायग्राम दिखाया जाए सो दैट आपको जस्ट अ मिनट। So, if you remember that particular diagram that we saw in your class 6, the chapter number 2, okay, I just show you that diagram. I'm just opening that chapter. That is why I asked you that it is very important कि आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उन सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यू कैन नॉट forget all the things that we have done earlier, जितनी भी चीजें हम पहले करके आए हैं वो सारी चीजें आपको you should remember all those things. So we did that in the motions of the earth, हमने वो वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो motions of the earth चैप्टर में करा था, whereby we were talking about revolution, ठीक है, जहां पर हम revolution के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। So in that chapter we did that. When we were talking about revolution, it was not latitude and longitude, latitude longitude वाला चैप्टर नहीं था। Okay, just have a look here. इस डायग्राम को यहाँ पर देखें आप, एंड नाउ आई थिंक आपको ये याद आ गया होगा पूरा, ठीक है। सी सनरेज जब आपके यहाँ पर देखिए, यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। सो जब सनरेज आपके डायरेक्टली फॉल कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर। सो अभी आपके जो दिस इज योर व्हाट, ये आपका क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। सो विंटर्स आपको देखने को मिलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में। जब सन रेज आपके फॉल कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो आपको विंटर्स कहाँ देखने को मिलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। बिकॉज अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, सी समर्स इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, रीजन बीइंग बिकॉज राइट नाउ द सन rays are falling directly overhead in the northern hemisphere. अभी जो सन रेज है वो डायरेक्टली आप देखते हैं कि वो नदर्न हेमिस्फीयर में फॉल कर रही हैं, और क्योंकि वो नदर्न हेमिस्फीयर में फॉल करती हैं डायरेक्टली इस समय, तो यहाँ पर आपको नदर्न हेमिस्फीयर में समर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड यू विल फाइंड विंटर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर, क्लियर, ये ऑपोजिट चलता है। आई होप दैट यू रिमेंबर दिस डायग्राम, वी हैव डिस्कस्ड इट। ऑन दी अदर हैंड जब आपका मूवमेंट हो जाता है अर्थ का एंड द अर्थ मूव्स अहेड, यू सी दैट नाउ ओवर दिस पोजीशन, यहां पर अब आप देखेंगे कि जो सन रेज है, द सन रेज आर फॉलिंग इन दी सदर्न हेमिस्फीयर,
ठीक है, अब सनरेज क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में फॉल करती हैं, जिसकी वजह से आपको समर्स मिलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में, एंड यू विल फाइंड विंटर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो दैट इज व्हाई यहाँ पर आपकी बुक में ये जो लाइन लिखी हुई है, दैट द सन, यू नो द सन, व्हाट इट इज सेइंग, the sun rays do not fall directly in the region. So इसका क्या मीनिंग है कि नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जब विंटर्स होते हैं, सो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जब विंटर्स होंगे ना, तो आपकी जो सनरेज है वो डायरेक्टली फॉल नहीं करेंगी वहां पर. सनरेज आपकी कहाँ होंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में होंगी. ठीक है, सो यू विल फाइंड दैट द सनरेज आर फॉलिंग इन दी सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, और इसकी वजह से आप ये देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि सनरेज नहीं पहुंच पाती है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डज नॉट रिसीव डायरेक्ट सनरेज. दैट इज व्हाई यू सी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी विंटर्स होते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स मिलेंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको समर्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, सो कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन, during the winter season the sun rays do not fall directly in the region, and as a result the temperatures are quite low in the northern India. And that is why आप ये देखेंगे कि northern India के अंदर temperatures आपको low मिलेंगे. You will find the conditions, weather conditions are cold. Okay, reason being, we have done this diagram previously in chapter number 3, that is motions of the earth, जहां पर हमने रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की बात करी थी. सो तब हमने ये पूरा डिस्कस करा था आपका. ठीक है, एंड दैट टाइम वी डिस्कस दैट सनरेज जब डायरेक्टली आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फॉल करेंगी तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके समर्स होंगे. बट व्हेन सनरेज आर नॉट फॉलिंग डायरेक्टली in the northern hemisphere, you will find winters in the northern hemisphere. I hope that this is clear to you. Okay, सो सीजन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि सीजन्स में चेंजेस कैसे आते हैं, कब आपके विंटर्स होते हैं, कब आपके समर्स होते हैं, व्हेन इज योर ऑटम, व्हेन इज योर स्प्रिंग, व्हेन इज योर रेनी सीजन. सो ऑल दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, दैट इज योर रेवोल्यूशन. बिकॉज सन के चारों तरफ जब अर्थ रिवॉल्व करती है उसे रेवोल्यूशन बोला जाता है. रोटेशन क्या होता है, रोटेशन इज व्हेन द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस. जब अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, दैट इज रोटेशन. एंड रेवोल्यूशन इज जब अर्थ आपके सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, मूव करती है, दैट इज रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से सीजन्स में चेंजेस आते हैं. ठीक है, सो इफ यू आर नॉट क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट राइट नाउ, प्लीज स्विच इट वेरी क्विकली. आप प्लीज जल्दी से जाएं और उन लेक्चर्स को देखें, चैप्टर नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ. Understand this concept because this is a very important concept. That is why I am repeating again and again. आपको सारे previous lectures की concepts पता होने चाहिए, तभी आपको ये chapters easy लगेंगे. If you have understood this line that why it is saying sun rays do not fall directly in the region, that means you are clear with this concept कि sun rays अभी fall कहाँ कर रही हैं. Right now the sun rays are falling in the southern hemisphere. That is why southern hemispheres में आपको summers मिलेंगे. And they are saying कि sunrays अभी northern India में, northern hemisphere में fall नहीं कर रहे हैं. That is why यहाँ पर आपको winters मिलते हैं. All right, clear? Now we are coming to the next. That is hot weather season or the summer season. Okay. In the hot weather season, sun rays more or less directly fall in this region. Temperature becomes very high. Hot and dry winds called as loo, they blow during the day. Okay, so now what happens कि अब आप देखेंगे कि आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो आपका सनरेज के कांटेक्ट में आ रहा है. नाउ सनरेज आर एक्चुअली डायरेक्टली फॉलिंग इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब क्योंकि सनरेज आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फॉल कर रही हैं, दैट इज व्हाई यू विल सी दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको समर्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाई यू विल सी दैट नाउ द कंडीशंस आर वेरी हॉट. टेम्परेचर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं. हॉट एंड ड्राई विंड्स विच आर कॉल्ड एज लू, जो बहुत गरम हवा आपके वहां पर चलती है रीजन्स में, बेसिकली प्लेन रीजन्स में चलती है, इसे लू बोला जाता है. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज लू. So hot and dry winds called as loo blow during the daytime, and that is why आपने कभी आपकी families में बोलते हुए सुना होगा, often your parents
often your elders must be saying you not to go outside during these summers. आप बाहर नहीं जाएं because बहुत तेज गर्मी है, लू चल रही होगी, right? So this is your hot weather or summer seasons. Clear? These are your seasons, these are your weather conditions, how the weather changes. This is how the weather is changing monthly. आपका किस तरीके से monthly weather change होता है. You see that आपका cold weather season कब से कब तक होता है? दिसंबर से लेकर के फरवरी तक. Hot weather season, that is your summer season, it is from March to May. All right, so we have completed with your 2 seasons and I hope that this is clear to you. And now you have understood that जब northern hemisphere में आपके sun rays fall करेंगी, when sun rays are falling directly in the northern hemisphere, you will have the summer season. जब northern hemisphere में sun rays होंगी, तब आपके क्या होगा? Summer season होगा. And you see that जब sun rays आपके northern hemisphere में fall नहीं करेंगी directly, the sun rays are falling in the southern hemisphere, actually you will find the winter season. आपको क्या मिलेगा? Winter season मिलेगा. Clear? All right. Now come to southwest monsoon season or the rainy season. अब आप आ जाइए southwest monsoon season पर, जिसे rainy season भी बोला जाता है. ठीक है. So now what is southwest monsoon season और rainy season? आपने अभी तक generally rainy season ही सुना होगा. ठीक है, आपने कभी ऐसे नहीं सुना होगा कि इसको साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन भी बोला जाता है. बट आज आप ये बात जान लीजिए दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन. ठीक है. सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन? साउथ वेस्ट ही क्यों बोल रहे हैं? कुछ भी और नाम भी तो दे सकते थे ना, कोई सा दूसरा डायरेक्शन दे सकते थे. साउथ ईस्ट भी बोल सकते थे, नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन साउथ वेस्ट ही क्यों बोला? बताइए. Because there is a reason behind it. So what is the reason? Let us see this. Okay. So this season is marked by the onset and advance of the monsoon. The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. They carry moisture with them. When these winds strike the mountain barriers, rainfall occurs. ये पूरा का पूरा आपका मैकेनिज्म है मॉनसून का. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून कि आपका मॉनसून आपकी कंट्री में कैसे आता है. इट इज कॉल्ड एज द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून. ठीक है. अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या लाइन है, ये क्या बोला गया है. दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ द मॉनसून. तो रेनी सीजन तो तभी आएगा ना जब बारिश आएगी. ठीक है. The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal. What is this line? What does this mean? Okay, so don't worry, I'll be explaining you. Okay, so just give me a minute and I explain you this complete concept. ये पूरा का पूरा concept अभी हम समझते हैं and you will be able to understand it.